Hello students, how are you all? I'm hoping that you all are safe and fine. Today again we are here with our second chapter, that is acid, bases and salts. Last time we discussed about acids in detail, like their classification, properties, what they have in common, uses, all the things we have discussed in our previous chapter, previous topic, previous lecture or previous than that. So yes, now we are going to discuss about the bases. So what do you mean by base and what are the classification of base on different parameters? This thing we have already discussed. I am just going to revise it for once. So yes, base, what do you mean by base? Base is a substance which is bitter in taste. In general language we can say this definition, but on the basis of ionization we can say that ki bases are the substances which give OH negative, means hydroxide ion on dissociation. Okay. So yes, afterwards we have done the classification of the bases. Three parameters were there. First parameter on the basis of their acidity. So yes, monoacidic base, diacidic base, triacidic base. Monoacidic base means those bases which give only one hydroxide ion per molecule in the water. तो यस, एक मॉलिक्यूल बेस का एक ही हाइड्रोक्साइड आयन दे पानी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं monoacidic base. Diacidic means those bases which are giving 2 hydroxide ion per molecule, and triacidic means those bases which are giving 3 hydroxide ion per molecule. Then we have done on the basis of ionization. So yes, strong bases or weak bases. Strong means they completely dissociates in water, but weak means they do not completely dissociates in water. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाले होंगे वो पूरे के पूरे टूट के आयन बना देंगे, लेकिन वीक वाले क्या हैं, जो पूरे नहीं टूटेंगे, जो एसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेंगे ज्यादातर और थोड़ा सा टूट जाता है. नेक्स्ट वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर concentration. Concentrated acid or dilute acid. Concentrated means having more amount of base as compared to water, and dilute means having more amount of water as compared to base. So these were our classification. Now our next topic is properties of the bases. तो yes, what do you mean by properties of bases? Properties क्या है, किस तरह से bases behave करते हैं, all these things we are going to discuss today. First one is, as I told you, bases are those substances which are bitter in taste. तो yes, acids sour in taste थे, bases bitter in taste है. Next अगर हम बात करें तो they are soapy to touch. Basically what is happening beta, if I have taken some base in my hand, pinch of base, and I add some drops of water in that, and if I will rub in my fingers, then it will give me soapy appearance. तो यस, अगर उसको हम थोड़ा सा पिंच लिया, पानी थोड़ा सा हल्का सा डाल के अगर फिंगर के बीच में रब करके देखते हैं तो हमें हल्का सा वो सोपी जैसा लगता है, सोप जैसा फीलिंग आता है. सो दैट मीन्स दे आर सोपी टू टच. जब हम उन्हें टच करते हैं तो वो सोपी अपीयरेंस देते हैं. नेक्स्ट, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का होना जरूरी है. तो यस, ऑब्वियसली दे ऑल्सो गिव इलेक्ट्रोलाइट्स. NaOH अगर हम बात करते हैं तो ये पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स देता है 2. तो यस, ये दोनों के दोनों आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ नेक्स्ट property of the basis is, it is soapy to touch, it can conduct electricity, and it gives different colors with different indicators. हमने इंडिकेटर्स का कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है. तो बेसिकली इट विल गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट इंडिकेटर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रेड लिटमस विल टर्न्स इनटू ब्लू, चाइना रोज का जो लाइट पिंक कलर है इट टर्न्स इनटू ग्रीन, टर्मरिक जो है वो हमारे पास क्या है, इट टर्न्स इनटू रेड. तो डिफरेंट इंडिकेटर्स में ये डिफरेंट कलर्स देगा. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन. व्हाट ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन. यस, इनके पास क्या कॉमन है सब बेसिस के पास.
Basically, base is a substance which dissociates in water to give hydroxide ion. तो बेसिकली ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस. अगर मैं बात करूं NaOH की, मैं उसको यहाँ पे एक्वस लिख सकती हूँ, तब भी एक ही बात है. मैं इसको सॉलिड लिख के यहाँ पर पानी लिख सकती हूँ वाटर, तब भी एक ही बात है. बेसिकली प्रेजेंस ऑफ वाटर शुड बी देयर. यहाँ पे एक्वस का मतलब भी वाटर ही है, एरो के ऊपर वाटर लगाया तब भी उसका मतलब वही है. तो बोथ द थिंग्स आर द सेम थिंग. ठीक है. तो यस, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कैन डिसोसिएट्स एंड गिव आयंस. तो यस, एक पॉजिटिव आयन देगा एक्वस, क्योंकि ये पानी में टूटे हैं, आयंस पानी में ही प्रेजेंट हो सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट हियर एक्वस. एंड देन हाइड्रोक्साइड आयन, same thing will be formed in this case. So both are the same thing. Now एक मैंने NaOH लिया, फिर मैं KOH देख लेती हूँ. KOH के केस में it will give K positive ion and hydroxide negative ion. यस बेटा, यहाँ पे मैं आयन के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक सर्कल लगाती हूँ. क्यों? ताकि ये अलग से चार्ज दिख जाए, वरना कई बार ये ऐसे लिखने से मिक्स हो जाता है. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो वो पता नहीं चलता है, इसलिए मैं जनरली सर्कल लगाती हूँ. इट्स योर विश इफ यू वांट टू राइट द सर्कल और नॉट. इट्स कम्प्लीटली योर विश. नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वाटर के अंदर ये सॉलिड फॉर्म में है. देन इट विल गिव मैग्नीशियम आयन along with the hydroxide ion. Yes, basically what all the bases have in common, they have this hydroxide in common. तो बेसिकली हमने देखा हमारे पास एसिड के पास क्या था, H पॉजिटिव आयन था, और हमारे सारे बेसिस के पास क्या है, OH नेगेटिव आयन है. ठीक है. तो ये दोनों के पास कॉमन है, बेसिस के पास हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है. ओके. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is acid base reaction. Our fifth property is whenever a base reacts with an acid, it always forms salt and water. water को आप लिख भी सकते हो WATER. ठीक है. जब भी कभी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सोल्ट और वाटर बनाता है. अरे ये हमने कभी पढ़ा नहीं, अभी कल ही तो पढ़ा है. एसिड के भी रिएक्शन में एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वेरी गुड. तो यस, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. बात एक ही है, एसिड को बेस में मिक्स करो या बेस को एसिड में मिक्स करो, बोथ आर द सेम थिंग. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हियर वी कैन राइट एनी base, any acid, then it will form a salt along with water. So this is a neutralization reaction. We can write any other example. KOH plus H2SO4 gives you K2SO4 plus water. तो ये कोई भी रिएक्शन हो सकती है. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, अभी हमने एसिड के केस में भी डिस्कस कर लिया, बेस के केस में भी डिस्कस कर लिया. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? यस, यहाँ पे सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये आयन प्लस वाटर. पानी जनरली बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, तो पानी को हम एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं. बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्ट है, ये सब आयन की फॉर्म में हो सकते हैं. ये भी बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, +1 में आता है, लेकिन मैं आपको जर्नल एक ओवरव्यू दे रही हूँ. तो यस, Na से कट गया, Cl से कट गया, तो बचा क्या? एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन इज जस्ट अ रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म वाटर. न्यूट्रलाइजेशन इज नथिंग बट अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म वाटर. ठीक है. ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. एसिड से H पॉजिटिव आएगा, बेसिस से OH नेगेटिव आएगा. अभी हमें पता लग चुका है किसके पास क्या कॉमन होता है, एंड दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वाटर. ओके. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नाउ स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. क्या कुछ सुना है ऐसा सब? यस, एसिड के केस में हमने किया था, एसिड ऑलवेज रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस.
एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बट आई हैव रिटन हियर बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स, वो सिर्फ कुछ एक मेटल्स के साथ, नॉट ऑल द मेटल्स, सिर्फ कुछ एक मेटल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। सो दीज टू आर द रिएक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बुक में है और जो पेपर में एज इट इज पूछी जाती है। इन एनसीईआरटी ओनली 2 रिएक्शंस आर देयर in which a metal reacts with a base to form hydrogen gas. So these 2 reactions are very important. Last to last year board exam this reaction was there. एंड ये एम्फोटेरिक के रिस्पेक्ट में आती है, हम 3rd चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो यस, यहाँ पे मैंने दोनों को इकट्ठा डिस्कस किया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो बेसिकली दीज 2 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द ओनली रिएक्शन इन विच अ बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यस, बेस यहाँ पे हम कोई और बेस कोई और मेटल नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही रिएक्शन हमारे पास है। मैंने एसिड के केस में बताया था कि कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पेपर में कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और नहीं आ सकता, ओनली जिंक कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओनली 2 रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन आवर बुक, यही दोनों में से ही कोई आएगी अगर आएगी तो, ठीक है। तो यस, जिंक इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, एल्यूमिनियम ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, देन ओनली रिएक्शन कैन हैपन। सॉलिड से सॉलिड तो रिएक्ट करेगा नहीं, एक को तो एक्वस होना पड़ेगा, तो ये एक्वस कंडीशन में है। मैं जनरली बेटा वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, मैं यहाँ पर नेम्स नहीं लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जो चीजें मैं बार बार बता चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने जिंक को डिस्कस किया होगा तब मैंने नेम लिखा होगा, लेकिन अब मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ तो मैं नेम दोबारा नहीं लिख रही हूँ। बट वेन एवर यू आर राइटिंग द रिएक्शन इन अ बुक, इन अ पेपर, देन यू हैव टू राइट द नेम्स टू। आपको नेम लिखने पड़ेंगे, आप स्किप नहीं कर सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपके पेपर में हार्डली 3 or 4 रिएक्शन विल कम इन योर पेपर इन ऑल टुगेदर। तो उन तीनों चारों रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग भी करना है। फिजिकल स्टेट अगर नहीं लिखते हो, कंफ्यूजन है तो मत लिखना, कंफ्यूजन नहीं है तो जरूर लिखना। एंड देन यू हैव टू राइट द नेम, एंड इफ स्पेशल नेम इज देयर, स्पेशल फीचर इज देयर, कोई ऑब्जर्वेशन है, देन दीज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू राइट श्योरली इन योर इक्वेशन, ओके। सो ये चीजें जरूरी है, मैं बार बार कर रही हूँ इसलिए मैं इन सब की, जैसे हाइड्रोजन गैस का मैंने नाम नहीं लिखा है, ओके। So yes, when zinc reacts with sodium hydroxide, then it forms a special kind of salt which is known as sodium zincate. Its formula is very important. ये बहुत अलग से formula है, Na2ZnO2. तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा along with the production of hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन हम फिर दोबारा कर सकते हैं by the pop sound. अभी हमने कितनी बार कर लिया है। Next reaction is when aluminium reacts with sodium hydroxide, it forms sodium aluminate. NaAlO2, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, NaAlO2 along with the production of hydrogen gas. So सिर्फ 2 ही रिएक्शन है। ये एक सोल्ट अजीब तरह का है, क्या है इसमें, अगर मैं इस सोल्ट की बात करूं, आप लोगों को पता है कि मेटल्स जो होती हैं वो जनरली पार्ट होती है पॉजिटिव आयन की, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मेटल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। सो यस, इट इज मेड अप ऑफ 2 आयन, Na पॉजिटिव एंड ZnO2 नेगेटिव। तो यस, यहाँ पे जो हमारी मेटल है जिंक, इट इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन, ओके, इट इज क्लियर। तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन ऑफ द बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस। ओनली 2 रिएक्शंस आर देयर। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन। बेसिस कैन ऑल्सो रिएक्ट्स विद bases can also reacts with non-metallic oxides to form salt. कैसे? Bases can react with non-metallic oxide. हम लोगों ने 5th चैप्टर किया था, आप लोगों को याद है नॉन मेटल्स कहाँ पर प्रेजेंट थे, इस तरह का हमारे पास कुछ टेबल था। तो यस, आप लोगों को पता है यहाँ पे इस तरह के जो भी ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हैं, ये होते हैं मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ के जो भी मेटल्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे दे फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी ले लेना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, कोई भी एक बेस है,
base can react with non-metallic oxide to form salt along with the production of water. So yes, this is a reaction. ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर बेस है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो वो सोल्ट और वाटर बनाएगा. वन मोर एग्जांपल आई कैन राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन इज अ बेस reacts with non-metallic oxide to form calcium carbonate plus water. ये solid form है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो यस बेसिकली अगर कभी भी बेस किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. और जनरली बेस किसके साथ कंबाइन करते हैं? एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, बट यहाँ तो एसिड है नहीं. दैट मीन्स व्हाट वी कैन ऑब्जर्व बाय दिस रिएक्शन, अगर यहाँ पर भी सोल्ट और वाटर बन रहा है दैट मीन्स दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ये क्वेश्चन 1 मार्क के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटालिक oxides. Now students, last topic of today's lecture is uses of bases. So where we are using different bases in different industries, like NaOH, sodium hydroxide is used in manufacturing of soap because it is a soapy texture, soapy feeling, so it is used in the manufacturing of soaps. Next one is calcium hydroxide. We discussed in our first chapter where it is using. We are using it in the whitewashing, and when it combines with CO2 it forms calcium carbonate and gives the shiny appearance to the walls. We have discussed this now in first chapter, so it is an important point which can come in your exam. Now next one is magnesium hydroxide. This also we discussed in our previous lecture only. Magnesium hydroxide is milk of magnesia. It acts as an antacid. So yes, an antacid means whenever acidity is there we can take milk of magnesia so that it will neutralizes the effect of acidity. So where we can take it? We can take it for the, we can use it for the making the medicines for stomach troubles. Last one is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is used to remove the grease stains from the clothes. So beta, this is all about the topic basis. Today I am not going to start with our new topic because in our next week we are going to discuss the chapter 1 again, because chapter 1 is coming in your PT1. So we have to revise the chapter in our upcoming 2 videos. I will just revise which kind of question can come in your exam, what are your doubts. If you are having any doubts then you can ask me, you can message me on WhatsApp. All these doubts I will clear in my upcoming videos in the next week. So yes beta, you can send me the doubts. You will revise the chapter again. Your paper will be like 5 marks MCQ will be there, 5 marks one word answers will be there, 5 marks filling the blanks will be there, and 5 marks activity based question will be there. So yes beta, activity based means any reactions which we have done in detail. So all these reactions you have to do, balancing can be there. So thoroughly reading of the chapter should be important. You have to read the chapter, you have to do the NCERT questions first, because those students who are clear with NCERT questions, all the questions which are present in text type or exercise type, then 80% to 85% chapter means 80 to 85% chapter is clear in their mind. Afterwards you can take your S-Chand book and do as much as question you can do. Paper will be easy if you have read all the chapter. Paper will be very difficult if you are just sitting like idle. You are not doing anything. So yes beta, that's why I am not starting our new topic, because it's a lengthy topic. So after your PT1 we will continue with this chapter, and in next week we are going to discuss about our chapter first. This is all about for today's video. Thank you.